Okay, so we shall start from where we left yesterday. In the effect of intensity of light on photoelectric current. ठीक है? So if we are increasing the intensity of the light radiation, that means the number of photons that are striking the metal surface per unit time will increase. And we know that each photon strikes with one electron. That means, in other words, each photon is responsible for taking out one free electron from the metal surface. So if number of photons that are striking the metal surface are increasing, so we can say that the number of free electrons that will be ejected or emitted from the metal surface will increase. And because the current constituted by the free electrons is called photoelectric current, so due to the increase in the number of photoelectrons, the photoelectric current will also increase. ये बात क्लियर है? तो ये बात लिखो सबसे पहले, ठीक है? Definition हो गई थी, the increase of intensity of light radiation means the increase in the number of photons striking the metal surface per unit time, right? अब लिखो, as each photon ejects only one electron, as each photon ejects only one electron, so on increasing the intensity of light radiation, bracket में लिखना keeping the frequency constant, we are not changing the frequency, है ना? Keeping the frequency constant, bracket close, the number of photoelectrons increases. The number of photoelectrons increases. Since the next point, since the photoelectric current is directly proportional, since the photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second, comma, so on increasing the intensity of incident radiation, 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 the photoelectric current also increases linearly. So अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच या इंसिडेंट रेडिएशन जो भी आप कहना चाहो, ठीक है? सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने कहा है ना कि इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लिनियरली, सो इस तरीके के ग्राफ हमें देखने को मिलता है. इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है? अब एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, अच्छा अगर मैं पूछूं कि अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं हम, इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted photoelectrons? Why? Because the amount of energy required to eject from the surface is same. So if intensity increases, the rest of energy will. लेकिन हमने ये कहा था कि इंटेंसिटी के साथ जो एनर्जी है फोटॉन्स की वो इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होगी जब फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रही है और वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. So the remaining part of the energy that is used in giving the velocity, na? So but with the intensity of light, the energy of photon is not increasing. Only the number of photons that are striking the metal surface are increasing. Because हमने पढ़ा है जो energy of a photon है, it is given by hc/λ या फिर hν. That means the energy of a photon depends on the frequency or the wavelength of the incident radiation. It is not depending on the intensity, right? So please write it down. Special note बना के. On increasing the intensity
intensity of incident radiation, keeping the frequency constant, एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा तभी एनर्जी फोटॉन की बढ़ेगी और तब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ब्रैकेट में कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, comma, the energy of photons remain the same. The energy of photons remain the same. So there is no change in the kinetic energy. So there is no change in the kinetic energy of the emitted photoelectrons. So there is no change in the kinetic energy of the emitted photoelectrons. In other words, the kinetic energy of the photoelectrons, in other words, the kinetic energy of the emitted photoelectrons, in other words, the kinetic energy of the emitted photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation. So अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? यस, वेरी गुड। इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ, देयर विल बी नो चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। Now when the experiments on photoelectric effect were being done, there were several conclusions drawn, and जो हम सीधे सारे पढ़ चुके हैं। Now these things, all those concepts that we have learned till now, they are converted into the laws, and these are known as laws of photoelectric emission. So first law लिखो, for the given photosensitive material, for the given photosensitive material and frequency of incident radiation, and frequency of incident radiation, bracket में above the threshold frequency, comma, the number of photoelectrons emitted per second, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation, to the intensity of incident radiation. Next paragraph बना के, in other words, the photoelectric current is directly proportional. In other words, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of radiation. समझ आ गया इसका मतलब? इंटेंसिटी इंक्रीज करो, अब इंटेंसिटी पॉइंट बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to the intensity. Why? Because when increasing the intensity, the number of photons that strike the metal surface are increasing, and because each photon is responsible for taking up one electron from the metal surface, so number of photo electrons are also increasing directly, right? तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से फिर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। नाउ सेकंड लॉ, for a given photosensitive material, for a given photosensitive material, comma, there exists a minimum cutoff frequency, there exists a minimum cutoff frequency, क्या कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी को?
हाँ हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में न्यू नॉट, below which no photoelectric emission takes place, below which no photoelectric emission takes place. अच्छा, suppose now कि there is one kind of radiation that are falling on the metal surface. जब हमने उस स्लाइड को मेटल सरफेस पे गिराया तो then the photoelectric emission does not take place. That means that radiation is unable to take out the electrons from the metal surface. Now what will happen if I increase the incident of the incident radiation? अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊं इंटेंसिटी को, will the electrons come out or not? It will come out. Sure. क्यों आएंगे यार? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी से एनर्जी नहीं बढ़ती है. तो फिर वो इंटेंसिटी बढ़ाए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए. अब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, बस उनकी संख्या ज्यादा हो गई. ओनली दे हैव इंक्रीज्ड इन नंबर, बट एनर्जी थोड़ी बढ़ी है फोटॉन्स की. फोटॉन्स बढ़े तो वो इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालेंगे. फोटॉन तब निकाल पाएंगे जब फोटॉन की एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू W नॉट होगी. अब कोई इंसिडेंट रेडिएशन है जो मेटल सरफेस पे गिर रही है और वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पा रही है, दैट मींस उसकी एनर्जी जो है वो W नॉट से कम है. आप कितनी ही इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज कर लो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, बिकॉज इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे खाली नंबर बढ़ रहा है फोटॉन्स का जो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे, एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है. ठीक है, समझ गए ना? So for a given photosensitive material there exists a minimum cut of frequency called threshold frequency below which no photoelectric emission takes place. Howsoever high is the intensity of incident radiation. Howsoever high is the intensity of incident radiation. Howsoever high is the intensity of incident radiation. समझ गए? Third law. Above the threshold frequency, comma, the maximum kinetic energy को K लिया करो, ठीक है? The maximum kinetic energy of the photoelectrons, is directly proportional to the frequency of incident radiation. Is directly proportional to the frequency of incident radiation. Is directly proportional to the intensity of incident radiation, but is independent of its intensity. But is independent of its intensity. क्या समझ आया इस पॉइंट का मतलब? कि वो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट? क्योंकि फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी या उस लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है? फोर्थ लॉ, द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन is an instantaneous process. The photoelectric emission is an instantaneous process. That is, i.e., as soon as the light of suitable frequency is incident on the metal surface, comma, it emits the photoelectrons without any significant delay. जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है यानी कि वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही लाइट उस पे गिरेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन दीस टू इंसिडेंट्स. ठीक है, ये हो गए हमारे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. नाउ वी विल प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कांसेप्ट्स दैट वी हैव कवर्ड दिस वन. ठीक है, सो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन. First question is, what is the frequency of a photon? What is the frequency of a photon
whose energy is 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला देखें। हाँ, फॉर्मूला लेके बेटा को याद होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले से रिलेटेड तो है ही नहीं। एनर्जी बस दो ही तो फॉर्मूले, E इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा या E इज इक्वल टू h न्यू। यहाँ पे एनर्जी हमें दे रखी है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h की वैल्यू हमें पता होती है, न्यू निकालना है। E इज इक्वल टू h न्यू होता है और तो न्यू इज इक्वल टू E by h। E की वैल्यू कितनी दे रखी है 66.3, h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 into 10 to the power minus 54। अब देखो यहाँ पे ना हमें थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल 6.626 into 10 to the power minus 54 होती है h की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमें 66.3 दे रखा है। अगर हम इस वैल्यू को 6.63 लिख लें इस तरीके से, तो हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। और इसको तो आराम से लिखा जा सकता है बिकॉज़ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो हम इसे 6.63 लिख सकते हैं। तो हम गिवन की h की वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे 6.63 into 10 to the power minus 34। ये h की वैल्यू SI में हो गई, और जबकि ये जो दे रखी है 66.3 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। सो इसे सॉल्व कर लो। देखो ये वाला पॉइंट हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1.6 into 10 to the power 16। आंसर देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये डेसिमल हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 10 आ जाएगा उधर, तो हमारा बचेगा 1.6 into 10 to the power minus 19 था, तो इसका 10 मिलके minus 18 हो गया, और ये प्लस 34 बन के ऊपर जाएगा, तो 34 minus 18 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये आंसर किसमें होगा हर्ट्ज में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज होती है ना, तो ये आपका आंसर होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a light of wavelength 4950 angstrom 4950 angstrom, एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं, एक के ऊपर सर्कल, ठीक है। एंगस्ट्रॉम is viewed as a continuous flow of electrons, photons is viewed as a continuous flow of photons, comma, what is the energy of each photon in electron volt। जल्दी से सॉल्व करने का टाइम, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E equal to H upon lambda into 10 to the power 9 into 10 to the power 9। 10 to the power minus 10। हमारा जो फंडामेंटल वो तो हमने डिराइव करा था, जो भी है हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है E is equal to h over lambda, जो हर जगह ट्रू है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, h की वैल्यू पता होती है, c की वैल्यू पता होती है, लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ट्राई करो। अब बिकॉज लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो 4950 1 एंगस्ट्रॉम को हम 10 to the power minus 10 मीटर लिखेंगे, है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करना, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इस चीज का। जैसे ये 4950 है, तो
तो हम इसको लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 4.950 into 10 to the power 3, ठीक है। और फिर 4.950 को 50 हटा दो, 4.9 यूज कर लेना, 4.9 into 10 to the power 3, इसको इससे रिप्लेस कर लेंगे और इसको हम 6.6 लिख लेते हैं, 2 से हटा देते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फिर से मैं लिख देता हूं एक बार, 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon 4950 को हम लिख देते हैं 4.9 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 10, ठीक है। अब मुझे लगता है ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 66 upon 49 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 0.7 into 10 to the power 12, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब जो ये एनर्जी आएगी हमारी, ये आएगी जूल में, ठीक है। अब जूल को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू e जूल, ठीक है। फिर इसे हम जो आंसर आएगा हम इसको फिर डिवाइड करेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 से। कोई डाउट? ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखो ये तो हो गया पूरा लंबा प्रोसेस है, एक मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था, अब मैं उसको यूज करके आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज, सिंगल सेम चीज। 2.9 into 10 to the power 7, आंसर नहीं है, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे अगर हमें निकालना हो लैम्डा नॉट, वो ऊपर जाने का था, जैसे वो था 6.626 into 3 कर दिया तो वो 19.878 आया। मैंने इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 19.878 को मैंने 19.8 ले लिया। अच्छा ये क्या आंसर है? 2.9 into 10 to the power 7, 4.9 into 10 to the power 7 नहीं अच्छे से चेक करें, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे। लैम्डा नॉट हमें पता है कि मैंने बताया था 12400 अपॉन W नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन, और ये आंसर आता था हमारा एंगस्ट्रॉम में लैम्डा नॉट की। अब यहाँ पे W नॉट ना हो के एनर्जी है और ये लैम्डा नॉट हो के कुछ लैम्डा है, डायमेंशन तो सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। इसको इधर पहुंचा देते हैं, देखो इसको इधर पहुंचा देते हैं और इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूले को अगर हम रीडिफाइन करें तो हम इसे लिख सकते हैं एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये लिखा जा सकता है। सो अब लैम्डा नॉट की वैल्यू में एंगस्ट्रॉम में क्या दे रखी है 4950, तो हम लिख सकते हैं 12400 अपॉन 4950, इसको सॉल्व करो। ये समझ आया आपको? अब इसको मैंने इधर ले लिया, ठीक है, और इसको नीचे ले लिया, तो ये लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम नीचे आ गया और ये E एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इस साइड चला गया। तो यहाँ पे हमें लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में दे रखा है 4950, so we will write it as 12400 upon 4950. now solve it, what is the answer? और ये आंसर जो आएगा डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखिए हमारे कितना हार्ड वर्क बच गया, 2 स्टेप्स में हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 से 0 कैंसिल करो, 1240 upon 495, इसको डिवाइड करो, 2 4 8 11 क्या आ रहा है फास्ट। क्या वो बड़ा टाइम लगा देंगे 495 1240, दिस इज अबाउट 500 एंड दिस सो ये 2 साल में जाएगा, 3 साल में जाएगा, 3 साल में जा नहीं सकता तो 2 बार में जाएगा ये, तो 198 हाँ 198 आ रहा है। सो 495 5 990 हाँ
990 हुआ ना, 2 5 से 10 कैरी 1, 2 9 से 18 19 कैरी 1 990 हो गया, ठीक है। 2.5 इज द राइट आंसर। इसे सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर सकते हो यार, ये थोड़ी बताने की जरूरत है। सो आंसर इसका हो जाएगा आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। और अगर यही चीज नैनोमीटर में होती तो 1 0 हट जाता, 1240 अपॉन एनर्जी हो जाती इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बेटा अगर रिवीजन ही करोगे ना छूटता जाएगा फिर एंड देन यू विल फेस प्रॉब्लम। सो बेटर एटलीस्ट 10-15 मिनट लगेंगे, घर जाके एक बार रिवीजन कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी करो। if light of wavelength 412.5 nanometer 412.5 nanometer is incident on each of the metals given below. Is incident on each of the metals given below, comma, which ones will show photoelectric emission and why? उसके बाद एक टेबल ड्रॉ कर लो। देखो क्या कह रहा है इसमें, कर लिया करो। If light of wavelength 412.5 nanometer is incident on each of the metals given below, which ones will show photoelectric emission and why? एक वेवलेंथ है, एक लाइट है, इसकी वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर है, जो कि किसी मेटल पे गिर रही है, इन सारे मेटल्स पे गिर रही है। तो हमसे पूछा कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कौन से केस में होगा, ठीक है। क्या करना चाहिए? जैसे x से डिवाइड कर देंगे, अगर लैम्डा से छोटा है तो हो जाएगा, और बड़ा है तो नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेवलेंथ दे रखी है आपको 412.5 नैनोमीटर, आप एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालोगे ना, एनर्जी निकालो फोटोन की। अगर एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू किसी वर्क फंक्शन की है तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की कंडीशन तो यही थी ना कि E इज ग्रेटर देन इक्वल टू W नॉट। तो एनर्जी निकालो, एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ग्रेटर आती है, किसी केस में बराबर आती है, तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, वरना नहीं होगा, राइट। सो एनर्जी निकालो। ऐसे नहीं होगा जैसे हमने ये रखा लैम्डा अपॉन 12400 अपॉन वर्क फंक्शन, तो अगर हमारा हाँ तो वर्क फंक्शन निकालो। वर्क एक्चुअली ये जो मैंने आपको वही बताया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 12400 अपॉन W नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एंगस्ट्रॉम में आ गई वैल्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे आप W नॉट रखोगे, W नॉट क्या है, एनर्जी है ना, इसकी डायमेंशंस किसके हैं, एनर्जी के है ना, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यहाँ पे W नॉट के बराबर एनर्जी रखते हो तो आपको लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू मिलती है। अगर आप खाली एनर्जी रखते हो, यहाँ पे कोई भी रैंडमली एनर्जी रखते हो, तो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ये वाली वेवलेंथ रखोगे तो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी, वर्क फंक्शन थोड़ी मिलेगा। जब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू रखेंगे तब हमें वर्क फंक्शन मिलेगा, लेकिन जब हम किसी भी रैंडम टाइप की वेवलेंथ यहाँ पे रखेंगे तो हमें उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी निकालो सबसे पहले, आपको जो वेवलेंथ दे रखी है, और फॉर्मूला यही यूज होगा, फॉर्मूला यही यूज होगा, यही यूज होगा। HC ओवर लैम्डा निकल के कर सकते हो, लेकिन हमने उसी से जो डिराइव किया ना, हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नैनोमीटर में दे रखे तो 124 एग्जैक्टली
electron volt is equal to 1240 upon lambda in nanometer. ये फॉर्मूला हो गया आपका? ये समझ आया? हाँ ये यस, सो ये एनर्जी आ गई हमारी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी के फोटॉन्स दे आर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ दीस मेटल्स। ठीक है, देख लो मैंने कैलकुलेशन को कितना शॉर्ट में है, 1240 को मैंने 1.2 लिख दिया इनटू 10 की पावर 3 कर दिया, 4 इधर मैंने 4 डेसिमल इधर शिफ्ट करा, 4.1 इनटू 10 की पावर 2 दे आर गॉट कैंसिल एंड एक जीरो बचेगा, तो इट विल बी 12 अपॉन 4.1। सो आपको दिख रहा है 12 upon 4 दिस इज 3.0। सो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशंस को रिड्यूस करिए, बिकॉज़ इन क्वेश्चंस में द कैलकुलेशन इज जनरली लॉन्गर। ठीक है, सो नाउ द एनर्जी ऑफ द फोटोन that is falling on the metal surface is 3.01 electron volt. Now for the emission of electrons, this energy should be greater than or equal to W naught or the work function of the metal. So ये 3.01 इससे बड़ी है तो होगा इसमें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, 3.01 इससे भी बड़ा है इसमें भी होगा, इससे छोटा है इससे भी छोटा है। So in these two cases the photoelectric emission will take place because the energy of the incident photon is greater than the work function of these metals. You have to mention the reason because they are asking why, and it was asked in one of the